Namaskar, late good afternoon. Anita ji, should I start? The Indian Society for Training and Development with association with Altruist Healthcare Foundation, and we are organizing a awareness workshop on urinary issues faced by women. The keynote speaker is Dr. Payal Chaudhary. She is a senior consultant gynecology and urology. Moderator is Anya Chaudhary. I welcome Anita ji to put a few words to start this program. Voice. Fine. Thank you, Usha ji. And welcome everyone, the eminent expert Dr. Payal and Dr. Anya with us today. And it's really a pleasure welcoming you on this platform of ISTD, the very first time on this virtual platform. But I'm very much sure that this journey will, though we are starting today, but we shall be continuing these awareness sessions with different topics, different themes, because this is one of the very closely related to my heart is the theme. Like we must really have such awareness sessions, especially for the medical health and all. We have been doing it a lot. So today we have gathered here with a shared purpose to break the silence, eliminate stigma, and empower women, because that is again women empowerment is very close to my heart, and we are taking that theme ahead with this. And today we are going to empower women to take control of their urinary health. Though this workshop, we aim to provide valuable information, resources, and support to address these issues head on. Our distinguished panel of experts will definitely guide us through various aspects related to urinary issues faced by women. You'll be wondering, friends, when I was circulating this, so I have received many messages from many members of mine. They said, why only women health, ma'am? Such problems are there with the men also. So why are you focusing only on women? So that's why I said we shall be really continuing. And yes, of course, now I am addressing all such members who have mentioned such messages to me. Yes, we shall be continuing it. And I understand it's a universal problem. It is not only for women, but yes, of course, for the men also. And we will be addressing again in a second other platform also. So they will dwell upon into certain common causes, symptoms, treatment options, while emphasizing the importance of early detection and prevention. कहीं ना कहीं जो हम लोग जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम जो अवॉइड करते हैं ना, द वुमेन की जो एक आदत होती है महिलाओं की, ठीक है चलता है टाइप का एटीट्यूड होता है, सब पे ध्यान देना है, फैमिली को देखना है, परिवार को पूरा देख रहे हैं, ऑफिस भी देखना है, बाकी सब देखना है, लेकिन अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना है. सो आई थिंक मैम आज आपकी कई बातों से कई लोगों को एनकरेजमेंट भी मिलने वाला है और वो समझेंगे कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन का क्या रोल होता है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल सच थिंग्स एंड वी एनकरेज यू all to actively participate, ask questions, engage in a very meaningful discussion today throughout this workshop. Together we can really create an open and inclusive environment where everyone feels comfortable sharing experiences, concerns, and knowledges. This is what I felt, and I really want this session is going to be a very interactive session. I request all the participants who are participating here, you can always put your questions in the chat box, and our moderator Anya ji is definitely going to take these questions one by one, very needed. उषा जी हैं, मैं भी हूँ, हम आपके साथ लगे रहेंगे. लेकिन I really welcome, please put your hands together guys with your virtual reactions to Dr. Payal Chaudhary and Anya Chaudhary ji. Thank you, and over to you. Thank you. Thank you, Anita ji. I'm reading the biodata of Dr. Payal Chaudhary. This is right thing कि what you have said. It's a good point कि किसी ने gents ने पूछा कि gents का क्यों नहीं, but ladies are the backbone of the family. तो जेंट्स को लेडीज वैसे कहेंगे, तो ये वाला जब देखेंगे जेंट्स, दे विल मोटिवेट कि यू हैव टू, जेंट्स के लिए भी एक सेशन होगा
तो बेटे पायल जी के लिए जो है ना अब प्रेशर बढ़ेगा. Dr. Most Payal, welcome. Dr. Payal Chaudhary, Senior Consultant, Department of Obstetrics, Gynecology and Post-Work Healthcare by Rainbow Panchsheel Park, birth rate by Rainbow Malviya Nagar, New Delhi. Her education is MBBS, MD, FICOG. Dr. Payal Chaudhary is an experienced obstetrician and gynecologist. She has trained at one of the in Delhi's premier medical college, Lady Harding Medical College. She later did an observer fellowship in Pittsburgh, USA, and Urogynecology fellowship from Kiel's Institute, Germany. Her work profile: with over 20 years of experience in her field, she is renowned for her work in natural birthing, minimally invasive surgeries like laparoscopy, hysterectomy, myomectomy, and hysteroscopy surgeries and vaginal surgeries as well. She has keen interest in urogynecology and works diligently towards improving quality of life for women with urinary incontinence, prolapsed uterus, and other bladder problems. Her sweet nature, a kind-hearted human being with focus on alleviating suffering in women and improving the woman health. Her major skills: obstetrician, gynecologist, keyhole and vaginal surgery, urogynecology. Sweet-natured Dr. Payal, welcome Payal Chaudhary. Her daughter, Dr. Anya Chaudhary, she is the moderator for today's session. So, just to clarify, Anya is not a doctor. Actually, she's a class 12 student who's been working on this course. In fact, she's the one who's motivated me to speak to all of you guys. And we've done these sessions before also where we talk about these issues. And in fact, she's the one, this is her brainchild, and she's worked on all the, I come in as an expert regarding the proper medical aspect of it. So she'll be talking about all this. She's been doing work in this area for a while now. That's great, Anya. Thank you. Great Payal ji. And sometimes it happens na कि parents बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, but at the same time kids are always working for the parents. You must be busy with your professional life, but then she asks you, she twisted you towards this awareness sessions also. Thank you so much, Anya. And I would like to welcome our past president who had joined us here. I would like to recognize the presence of Dr. Yogesh Kumar Upadhyay. He's a national past president. Thank you, Dr. for joining us. Yes, Usha ji. Anya's profile: an intuitive and dedicated high school student with excellent writing and skills and a passion of creating a social impact in the world. Strong, and she has done a major projects. Monolith every finest she published book. Anya Chaudhary published an anthology of poems of exploring various forms of poetry written during her studies. Our Health Matters, health awareness organization. The mitigate and lack of awareness surrounding women's urinary health started an organization in conduct workshops across the country for awareness and access to treatment for women suffering from urinary problems. She has done internships PLK Max Super Specialty Hospital, Psychology internship, Women's Fund Asia, Academics and Research BLK Max, voluntarily work, drop and find COVID-19 resource organization. She's a multi-talented and multitask girl. God bless you and best wishes for you. You can start, Anya. Thank you so much, ma'am. Okay, so shall we begin now? Okay, very good afternoon to everyone present. As Dr. Payal mentioned, I'm Anya Chaudhary. I'm in class 12, and I know that comes as a surprise to a lot of you. But basically, I started this to talk about women's health issues, women's urinary issues, and to answer your question about why not men's issues. I know that both women and men suffer from this issue, but the thing is that women often feel like their problems need to be shut down. They need to
be sacrificial. They need to not think about their needs and their issues, and they push them down, and they think this is something that I just have to deal with, that I can't seek treatment for, I can't talk about. And that is exactly what I want to work against. I want women to know that this is an issue that they can get past, that they can live a life free of. And that's why I want to talk about it and start the conversation, make you aware of what the resources are that you can use, the treatments that you can get, and the preventive measures that are there. So I will begin presenting now. So urinary issues in women. Shh. There's a lot of topics that as soon as we hear them, we just go shh. इसकी बात नहीं करते, ये रहने देते हैं, ये appropriate नहीं लगेगा. And that's one of these topics. One of these topics is urinary issues, especially with women. We think कि नहीं ये तो bathroom की बात है, ये तो अपने रखनी चाहिए, मेरे को लीकेज हो रही है, कितनी embarrassing चीज़ है. ये सब चीज़ें हम किसी से discuss नहीं कर पाते. And that's why we don't even know what it is, why it happens. So let's talk about that now. What is urine leakage? Urine leakage is जब आपको involuntary leakage हो जाए while sleeping, exercising, laughing, sneezing or coughing, or doing any sort of physical activity. And what you might not know is that 45% of all women experience this. That means कि 1 out of 2 women might have this. It can also mean urgently needing to pass urine, frequently urinating, always worrying about needing to pee. जहाँ जा रहे हो बस यही सोच रहे हो कि बाथरूम तो है ना, मुझे जाना पड़ गया तो कहाँ जाऊंगी. So why does it happen? First, let's understand our bodies a bit. So in your body, there is a basket of muscles below the uterus and the urinary passage. इसी basket को damage होता है when there's childbirth, when you age, when there's pelvic injuries, when there's surgeries and diseases, because these muscles get weaker with all of these causes. And when these muscles get weaker, कभी कभार oops थोड़ा सा leak हो जाता है. So you might also relate to some of these factors. You drink a lot of tea or coffee, आप बहुत cough करते हो, you get constipated frequently, or you're on blood pressure medicines. इन सब फैक्टर्स से यूरिन लीकेज इंक्रीज हो सकता है. इट इज़ वेरी कॉमन कि जिन लोगों को यूरिन लीकेज होता है, दे फील एम्बेरस्ड, दे फील एंग्री, दे फील अशेम्ड, बिकॉज ये सोशली अप्रोप्रिएट माना नहीं जाता, ऊपर से इसकी बात नहीं कर सकते. तो उसकी वजह से पीपल फील कि वो डेली टास्क, सोशल एक्टिविटीज़ में नहीं जा सकते, लोगों के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते, पार्टीज़ नहीं अटेंड कर सकते, क्योंकि लीकेज हो गई तो क्या करेंगे. बट जो हमें नहीं पता है कि this can be treated. There are many available treatments. There's medication, there's muscle training, there's surgery for extreme cases, and other methods as well. It can be prevented also. अगर आपको नहीं भी है, you can do certain things to prevent this ever happening to you. You can do exercises, you can manage your fluid intake, and अगर आपको कोई chronic conditions हैं जैसे chronic cough या respiratory issues, तो आप उनको भी treat कर सकते हो so that your urine issues can be prevented. Most important thing is that we need to talk about it. अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि there is a solution. If we talk about it, we'll realize that there is a solution. We can seek out the solution and we can live our lives confidently and independently. And as women, we should seek that out. We should seek out कि हम एक independent life जी पाएं, हम एक confident life जी पाएं, and हम किसी चीज़ से hold back now. I'll now hand over the podium to Dr. Payal Chaudhary. Thank you, Anya. I think you've started the topic well कि हम बातें क्या करने वाले हैं. और सच बताऊं तो इंडिया में यूरोलॉजिस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे जो कि मेन की यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं. विमेन भी पहुंचती हैं उनके पास, कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं उनको, पर वो सिमिलर टू जो मेन को मिल रहे हैं वही सोल्यूशन. पर हमारी बॉडीज तो बहुत अलग है मेन की बॉडीज से, बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ हम वी गो थ्रू. जैसे चाइल्ड बर्थ है, बच्चा पैदा होता है, उस टाइम जो जोर लगता
है, नीचे का एरिया ही कह लीजिए फर्क है। मैं उसकी एनाटॉमी थोड़ी सी बताऊंगी, उससे हमारी समझ और इम्प्रूव होती है कि क्या बात कर रहे हैं और उसको कैसे हम वो कर सकते हैं। सो यूरिनरी सिस्टम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, किडनीज है, किडनीज के नीचे यूरेटर्स जो यूरिन कैरी करते हैं, और नीचे ब्लैडर जैसा ऑर्गन होता है जिसमें ये यूरिन प्रिजर्व होता है, और उसके नीचे एक छोटी सी नली है यूरेथ्रा। ये नली औरतों में बहुत छोटी सी होती है, मेन में खूब लंबी होती है। सो मेन को लीकेज इश्यू कम होता है, औरतों को ज्यादा होता है, बिकॉज एक छोटा सा एरिया है, वो लूज पड़ जाए तो वहां से एक दो बूंद यूरिन जरूर निकल जाएगा। और बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, शुरू में एडोलेसेंस में पीरियड शुरू होते हैं, फिर आपका रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद मेनोपॉज आता है, टिश्यूज की उस टाइम और वीकनिंग होती है। सो ये सारे फैक्टर हैं जो बड़े एक्सक्लूसिव टू विमेन है। ये अगर आप पिक्चर देखें तो ये साइड व्यू ऑफ अ विमेन्स बॉडी है, अगर अंदर से दिखाई दे रहा हो हमें तो। आगे सबसे आगे फ्रंट में ब्लैडर है, उसके बाद यूट्रस वूम्ब जिसको हम बोलते हैं वो है, और वजाइना का रास्ता है, और उसके पीछे बावल है जो मोशन के लिए इंटेस्टाइन का पोर्शन है। तो आप देखें इनके नीचे वो जो हैमक जैसा एरिया, जो बास्केट जैसा एरिया है, वो है पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट रहे तो सब चीजों को अंदर खींच के रखती हैं, और ये लूज हो जाए तो इससे कई बार यूट्रस भी नीचे आता है, कई बार यूरिन लीकेज इशू होता है, कई बार कई लोगों का मोशन का एरिया भी लूजन पड़ जाता है और उन्हें कॉन्स्टिपेशन या डिफिकल्टी इन पासिंग मोशन एज सच शुरू हो जाती है। सो ये मेजर कारण इसका है कि ये पेल्विक फ्लोर मसल जो है ये वीक हो जाती है या ये डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट आन्या। सो जो मेन यूरिनरी इश्यूज औरतें जो फील करती हैं, एक तो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कई बार कई लोगों को बार बार हो रही होती है, जिसमें जलन महसूस होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, और ये कई बार एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में ज्यादा फील होगा। यूरिन लीकेज कॉफिंग पे, स्ट्रेनिंग पे, या यूरिन लीकेज जिसमें वेट नहीं कर सकते, जैसे ही लगा यूरिन जाने की जरूरत है एकदम टॉयलेट को भागना पड़ता। कई बार किडनी स्टोन्स इश्यूज हो सकते हैं, या डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, कि कई लोगों में जिनमें स्पेशली प्रोलैप्स हो जाता है, यूट्रस बाहर को निकल आता है, उनको लगता है कि पूरा यूरिन कर नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है यूरिन की, जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा देर बैठना पड़ता है, यूरिन शुरू करने में ही स्ट्रीम तकलीफ होती है, ये सारे इश्यूज भी आते हैं। सो ये वेरियस इश्यूज हैं जिनको हम थोड़ा टच करेंगे। मेजरली हम आज लीकिंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कॉफिंग या स्ट्रेनिंग से लीक होना और अर्जेंसी होना। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक मेडिकल वर्ड है जिसमें लीक हो जाता है यूरिन, ब्लैडर कंट्रोल की कमी हो जाती है। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम एज आन्या सेड, एंड पीपल थिंक इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। हर पर्सन जो एज कर रहा है उसका ये लीकेज नहीं होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, there are treatments and there are preventive measures that can really help us, हम कर सकते हैं। and there are also things that you can do on your own to stop या reduce कर लें अपना urine leakage, and you don't have to just live with it। हमारा basic purpose का ये सारी बात करने का यही है कि awareness हो इस बारे में कि ये सहते नहीं रहना है, इसका solution है, इसको handle किया जा सकता है। सॉरी, आई थिंक बीच में डिस्कनेक्ट हुआ। आन्या नेक्स्ट आप करिए। सो हियर इज अ स्मॉल वीडियो जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। वी नो दैट ट्रू कि मोर कॉमन इन वुमेन ओवर द एज ऑफ 50 है, 50 की उम्र के बाद ज्यादा है, पर एनीवन कैन। कई बार यंग उम्र की औरतों में भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है, लीकेज देखा जाता है। आप अकेले नहीं हैं, कई लोगों को हो रही है, बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात शुरू कर रहे हैं। दो तरह की होती है, एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो कि वर्ड वो स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं है कि काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, ये वाले स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम उस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो कि होता है फ्रॉम कॉफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, या कुछ भारी सामान उठाया या एक्सरसाइज किया, उससे जो यूरिन की लीकेज हो जाती है, ये है वो स्ट्रेस। क्योंकि पेल्विक फ्लोर जो मैंने डिस्क्राइब किया था, एक बास्केट की तरह एरिया ब्लैडर के नीचे है, वो
वीक पड़ जाता है तो ब्लैडर थोड़ा नीचे को आ जाता है, उसका माउथ थोड़ा सा लूज हो जाता है और उसके कारण जोर लगते ही यूरिन थोड़ा सा निकल जाता है। जो स्फिंक्टर है, जो एक कह लीजिए क्लोजर मैकेनिज्म है, वो उतने अच्छे से क्लोज नहीं अब हो पा रहा, तो इसलिए निकल रहा है। वीक कैसे हो गई ये मसल्स? टाइम के साथ, आफ्टर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, जोर लगा ना, उस टाइम पे वीकन हो गई। बाद में हमने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आई, कई बार सर्जरी हो जाती है, यूट्रस निकल गया, या जैसे जैसे एज बढ़ी टिश्यूज में वैसी वीकनेस आ गई, उस कारण से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। एक दूसरी इनकॉन्टिनेंस है विच इज अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। वो इनकॉन्टिनेंस है जो जैसे एकदम से यूरिन लगा तो भागना पड़ेगा। नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता, पर धीरे धीरे किसी किसी के साथ ऐसा होने लगता है। रात को यूरिन आया, बिना वार्निंग के एकदम से लगा यूरिन आया और बाथरूम पहुंचते तक लीकेज हो गया। ये भी काफी कॉमन है और ये ओल्डर एज में डेफिनेटली ज्यादा देखा जाता है कि बीच में से एक्सीडेंटली यूरिन लीक हो गया। ये मेन भी फेस करते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि आप हमेशा चिंतित रहते हैं कि बाहर निकले ना निकले, कहीं यूरिन निकल ना जाए, अगर मुझे टॉयलेट नहीं मिला, नहीं फसल आते हैं कि उसमें। सो ये सारे कंसर्न्स हैं जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में होते हैं। सो मसल इन द ब्लैडर में स्क्वीज व्हेन दे शुडंट। नॉर्मली ब्लैडर भरता है और फिर यूरिन पास होता है एक पॉइंट के बाद, पर इसमें थोड़ा यूरिन आने के बाद भी एकदम से मसल को सेंसेशन आती है, नर्व्स ब्रेन को मैसेज भेजती है यूरिन पास करना है, और अगर हमें उस वक्त बाथरूम ना मिले तो कई बार यूरिन निकल जाएगा, या ऐसा लगेगा कि अभी के अभी भागना पड़ेगा, यूरिन करना ही पड़ेगा। सो कई बार हमें कारण ही नहीं पता होता, पर सॉल्यूशन सबके लिए इसमें होता है, एंड प्रिवेंटिव सॉल्यूशन भी है। हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अभी हमें कभी कभार ऐसा होता है, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में ये बढ़े ना, उस पे हम काम कर सकते हैं, है ना। कई चीजें हैं that make it more likely more women get this problem than men get it. Again, a reason why we need to talk about it. वजन ज्यादा है तो इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज्यादा है। स्मोकिंग हमारी कंट्री में विमेन उतना नहीं करती हैं, पर अगर करती हैं और या फिर कॉफिंग रहता है किसी रीजन से, तो इनकॉन्टिनेंस का रिस्क ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन से इसका रिस्क इंक्रीज होता है, बिकॉज आप जोर लगाते हो और रोजमर्रा में जोर लगा रहे हो मोशन पास करने के लिए, तो वीकनेस आती है। कई दवाइयां हैं जिनसे ये रिस्क बढ़ता है, कई बीपी मेडिकेशन हैं या डायूरेटिक्स बीपी के लिए दिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम को वर्सन करते हैं। करेंगे नहीं तकलीफ, पर अगर ऑलरेडी तकलीफ है उसको बढ़ा सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, अगर आपको चल रही है प्रॉब्लम, meet with the gynecologist, discuss these problems and a solution can be brought about अगर ये issue चल रहे हैं तो। सो चैलेंजिंग लगता है कि ये कैसे सेटल होने वाला है, पर ऐसा नहीं है कि इसको एक हद तक सेटल नहीं किया जा सकता। कुछ मेजर इसमें करने पड़ेंगे, कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी ताकि हम फिर से फुलर लाइफ जी सकें। हम वॉक के लिए जाएं, हम एक्सरसाइज करें, हम अपने सारे काम करें बिना डरे कि कहीं यूरिन लीकेज ना हो जाए। So that is what the message is through this video. So next we'll talk about the further how we can tackle it, कैसे हम इन सारी situations को handle कर सकते हैं। Next slide Anya. So there are 3 main types as I said. एक तो stress incontinence जो जोर लगाने से यूरिन निकलना, खांसना, छींकना। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस जो एकदम से लगता है कि जाना है यूरिन और जाते ही आपको करना पड़ता है, नहीं तो निकल जाएगा, कहीं पर पॉट पे बैठते बैठते निकल जाता है, दैट अर्ज इनकॉन्टिनेंस। कई लोगों को दोनों चीज होगा, खांसने छींकने से भी निकलेगा, हंसने से भी निकलेगा, और अर्जेंसी भी लगी रहेगी, बार बार जाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स दिन में जाएंगे, रात को 3-3 4-4 बार उठेंगे। नॉर्मली 65 की एज से पहले रात को नहीं उठने की जरूरत पड़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक आधी बार। पर अगर आप 1 या 2 बार से ज्यादा उठ रहे हैं, 65 की एज के बाद भी अगर आप 2 बार से ज्यादा रात में उठ रहे हैं यूरिन पास करने के लिए, दैट मीन्स देयर इज एन इश्यू। दैट मीन्स कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो गई है, अर्जेंसी कंपोनेंट है, और उसको डील करने के लिए आपको बार बार रात में उठना पड़ रहा है, यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट आन्या। सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वही लाफिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, ये स्ट्रेसेस हैं जो बेली पे पड़ते हैं, जिसके कारण वो ब्लैडर का माउथ खुलता है और
वहां से यूरिन लीक हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस इन। हमें फर्क पता होगा ना तो हम उसका अकॉर्डिंगली हल ढूंढ सकते हैं। हम सारी चीज को सेम समझते हैं तो फिर सोल्यूशन नहीं समझ आता है। सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, हमें मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आन्या, कमिंग टू अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये इसमें जो मैंने बताया था अर्जेंसी। नॉर्मली पता है क्या होगा, हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब यूरिन आता है, हमें दिमाग ने बताया कि अब यूरिन आ रहा है। सपोज करिए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में उठ के चला जाऊंगा। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। थोड़ी देर में हम भूल भी जाएंगे कि यूरिन जाना था। शायद आधे पौने घंटे में ब्रेन फिर से सिग्नल देगा, अरे यूरिन जाना था। अगर आप कंफर्टेबली बैठे हो, आपकी मीटिंग खत्म हो गई है, तो आप फिर चले जाओगे। पर सपोज वो मीटिंग अभी चले ही जा रही है, आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। उसके और 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर सेंसेशन आई, अब तो ना मौका मिले तो चले ही जाना है, तो आप उठ के चले जाओगे। पर अब लास्ट में प्रेसिडेंट की स्पीच चल रही है, आपको लग रहा है नहीं अभी मैं नहीं जा सकती, आप फिर बैठे रहोगे। पर एक टाइम आएगा जब लगेगा कुछ भी हो, आप एक्सक्यूज मी करके कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, आप उठ के जाओगे। पर ये आएगा 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद टाइम। कई लोगों को ये विंडो ही नहीं मिलती, उनको जैसे लगा यूरिन जाना है, नहीं उठे तो लीकेज हो जाएगी। एम्बैरेसिंग लगता है, काम पे मुश्किल लगता है। घर में भी अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर पे रहते हैं, आप बाहर निकलने से कतराते हैं कि मैं बाहर गई कुछ प्रॉब्लम हो गई। लंबा रास्ता कहीं ट्रैवल करना है, आप मना कर दोगे, मेरे से नहीं होता, मुझे रास्ते में टॉयलेट नहीं मिलेगा। एंड ये बड़ी फेमिलियर सी बात हम सुनते रहते हैं, है ना, कि नहीं मेरे को ट्रैवल नहीं करना, या मुझे बाहर नहीं जाना, या पार्टी में जा रहे हैं तो चिंता कर रहे हैं। शाम के बाद से हमें लगता है कि अरे घर में ही बैठे तो अच्छा रहेगा। सो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में इन दोनों का कंपोनेंट होता है, दोनों करना पड़ता है। सो ऑन माई ओन टू फील बेटर, बड़े सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वेट लॉस पे वर्क करना चाहिए। भारी भरकम चीजें नहीं उठानी चाहिए अगर आपको ऑलरेडी इश्यू चल रहा है। पहले स्ट्रेंथनिंग करें मसल की, फिर भारी काम करने का सोचें। और पेल्विक मसल शुरू करें। डिलीवरी के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उनके टिश्यू वीक हो जाते हैं, तो डिलीवरी के बाद औरतों को जरूर से एक्सरसाइज करके अपना लोअर पेल्विक फ्लोर एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। एंड डॉक्टर को मिलिए, अगर ये तकलीफ नहीं सेटल हो रही है, मिलिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, चेकअप कराइए, इसका इलाज बिल्कुल संभव हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड आन्या। अगर हम लेटे इंसान में देखें तो ये जो हमें हॉरिजॉन्टल एरिया यूट्रस के नीचे नजर आ रहा है वो है पेल्विक फ्लोर। इसको हमें टाइटन करना है। जैसे हम यूरिन का करते हुए अगर हमें बीच में से रोकना हो तो हम सबको रोकना आता है ना, वो है मसल्स जो कंट्रैक्ट करनी है। पेट की मसल्स नहीं होती, ये थाई की मसल्स नहीं होती, हिप्स की मसल्स नहीं होती, ये वही अंदर की मसल्स हैं जो कंट्रोल करनी होती है। जब ये एक्सरसाइजेस ढंग से की जाती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जाती हैं, तो इनका बहुत फायदा होता है। मोस्ट ऑफ द लोग इनको कीगल्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं, और आपको हैरानी होगी ज्यादातर लोग ये एक्सरसाइज गलत तरीके से कर रहे होते हैं। इसलिए कई बार जब आप हमारे पास चेकअप के लिए आते हो तो हम एग्जामिनेशन करके आपको रियलाइज कराते हैं कि ये वाली मसल है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करनी है। एंड उससे बड़ी मदद मिलती है कि कैसे इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट, हम आगे पढ़ेंगे कि कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे करना है। आने नेक्स्ट स्लाइड। सो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस हैं जिनमें ये मसल्स को हमने टाइटन करना है और रिलैक्स करना है। जब ये हम टाइटन अच्छे से कर लेते हैं ना, ये प्रिवेंट करती है यूरिन लीकेज को, या कई बार इनएडवर्टेंटली गैस नहीं निकल जाता कि अरे ये तो कंट्रोल में नहीं है, ये भी तो एम्बैरेसिंग बात है। या जब लूज मोशन लगे हो तो मोशन पे कंट्रोल नहीं लगता, ये भी उस एरिया की वीकनेस का ही साइन है। एंड अगर किसी का यूट्रस नीचे को आता है, बाहर को आता है, या भारीपन उस एरिया में बना रहता है, यूट्रस थोड़ा नीचे है, ऐसे में भी ये मसल्स
की स्ट्रेंथनिंग, इनको स्ट्रेंथन करना बहुत मदद करेगा। सो इनको कीगल्स एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इनमें आप जैसे कहीं भी आप बैठे हैं, आप इस मसल को रियलाइज करिए कि ये अंदर वो मसल है जो हम यूरिन रोकने के लिए टाइटन करते हैं। उसको टाइटन करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे, फिर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर 10 सेकंड रिलैक्स करेंगे। एक बार आप लेटे हुए ये आइडेंटिफाई कर सकते हो या बैठे हुए, और उसी पोजीशन में 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर को, 10 बार रात को। धीरे धीरे जब आदत बन जाएगी तो आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की तो है नहीं कि एक स्पेसिफिक पोज में ही होनी है। आप बैठे हुए कर सकते हैं, आप खड़े हैं किचन में, आपको मॉर्निंग का टाइम है, आपको ध्यान आ गया है, आप उसमें कर सकते हैं। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 second hold, 10 second relax, 10 times in the morning, 10 times in the afternoon, 10 times at night. यही मंत्रा है जो याद रखना है अगर इस एरिया को हमने स्ट्रेंथन करना है, और इनको कीगल्स एक्सरसाइज बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड आने। So I think I've already told that. It prevents urine leakage, sudden urges को भी prevent करता है, गैस बावल रिलीज हो जाए गलती से उसको भी prevent करता है, और organ prolapse वाले केसेस में भी इसका ह्यूज रोल है इन एक्सरसाइजेस का। नेक्स्ट आने। अदर थिंग जो कि अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में मदद करती है, एक बार आदत बन जाती है ना कि लगता है यूरिन जाना है, यूरिन जाना है, हम ना कई बार जस्ट इन केस चले जाते हैं। अच्छा कुछ और नहीं है, मुझे काफी देर हो गई गए हुए, चलो यूरिन कराते हैं। अच्छा ये करना था, चलो यूरिन कराते हैं। अच्छा मैं तो कहीं जाने लगी थी, पहले यूरिन कराती हूँ। सोने से पहले यूरिन करने जाएंगे। इनमें से सोने से पहले यूरिन करने जाना बिल्कुल ठीक है ना। कभी बाहर दूर निकल रहे हैं, एक बार यूरिन पास करके जाएंगे, ठीक है। पर हर वक्त जस्ट इन केस चक्कर लगाते रहे, और दिन में 10, 15, 20 चक्कर अगर हमारे बाथरूम के लग रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और वो ब्रेन ने ना आदत डाल ली है, अर्जेंसी तो है ही पर हर बार अर्जेंसी नहीं होती। हर बार जब सोच लेते हैं कि अच्छा चलो हो आते हैं, कहीं आना जाए, हो आती हूँ कहीं आना जाए, ये ठीक नहीं है। जब आपका सारा दिन उसी के अराउंड घूमेगा, that means it is taking over a lot of your capacity. करना क्या है, इन्हें अपने को रीट्रेन करना, अपने ब्लैडर को रीट्रेन करना है कि वो ज्यादा यूरिन होल्ड कर सके। तो शुरू में अगर आप इसमें हम आपसे ब्लैडर डायरी बनवाते हैं, 3 दिन का रिकॉर्ड बनवाते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली आप यूरिन पास करने जा रहे हो, कितना यूरिन पास करके आ रहे हो, और क्या क्या कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी क्या क्या पी रहे हो, वो सारा हिसाब करते हैं, और उसके हिसाब से फिर चेंजेस लाते हैं। क्योंकि आपको ट्रेन करते कि अगर आप तो धीरे धीरे उसको 7 घंटा से पहले नहीं जाना, और उसको कैसे डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे 15-15 मिनट करते ही उस गैप को 3 से 4 घंटे लाते हैं, ताकि अब आप 3 से 4 घंटे पे यूरिन जाओ और आपका गैप बढ़े और आपको लेस नंबर ऑफ टाइम्स टॉयलेट जाना पड़े। ये फ्लूइड मैनेजमेंट का भी रोल है। कई बार आजकल हम बड़ा कहते हैं अरे खूब पानी पीजिए, स्किन अच्छी रहती है, बॉडी अच्छी रहती है, तो क्या आप इतना पानी तो नहीं पीते कि सारा दिन टॉयलेट के चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं। बॉडी के लिए ये कैपेसिटी ही नहीं है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा होता है एक फ्लूइड। सो फ्लूइड मैनेजमेंट भी कीजिए। जस्ट वेट फॉर ए फाइल, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, शायद कनेक्ट कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, अब सुनाई दे रहा? हेलो। हाँ डॉक्टर पायल सुनाई दे रहा है। जी जी। मैंने स्क्रीन मुझे आने आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक रीशेयर करिए आप।
जी. So when should I see my doctor? अब हमने मसल स्ट्रेंथनिंग कर ली, हम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, या नहीं भी की है और प्रॉब्लम से बड़े परेशान है, तो हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है. इस चीज को टैकल कर सकते हैं. अभी ये कभी कभी हो रहा है, कभी हो गया, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ठीक रहता है. ये भी राइट टाइम है मिलने के लिए, ताकि ये आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम बढ़े ना. अगर आप ऑलरेडी पैड्स पहन रहे हैं या स्पेशल अंडरवेयर्स पहन रहे हैं जिनमें लीकेज सोक करने की कैपेसिटी है, मे बी यू शुड सी अ डॉक्टर. मे बी ये प्रॉब्लम हम सेटल कर सकते हैं. और अगर स्किन इरिटेशन और ये सब इश्यूज कई बार होते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द साइंस दैट यू मस्ट कम एंड सी अस एंड गेट एन एग्जामिनेशन डन एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट. नेक्स्ट स्लाइड आने. सो ट्रीटमेंट क्या क्या है? कई सारे मेथड्स हैं जिनसे ट्रीटमेंट की जाती है. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट थोड़ी फर्क है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट फर्क है. सो ये डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है. कई मेडिसिन हैं अवेलेबल जो ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं, तो जिनको अर्जेंसी रहती है, बार बार यूरिन आता है, उनको इनसे फर्क पड़ता है. कई जिनमें मसल्स वीक हैं, वो एरिया की वीकनेस है, उनमें कई सर्जरीज हम कर सकते हैं जिससे उस एरिया को हम टाइटन कर देते हैं. जैसे किसी का प्रोलैप्स है, उसमें हम प्रोलैप्स सर्जरीज करते हैं, जिसमें कई बार यूट्रस रिमूव करते हैं, कई बार सिर्फ टाइटनिंग ऑफ द टिश्यूज करके इन चीजों को सेटल करते हैं. तो वो है जो सर्जरी हम करते हैं. फिर नर्व्स की जाती है जिससे ब्लैडर रिलैक्स करा जाता है, अर्जिन कॉन्टिनेंस का इशू रिजॉल्व किया जाता है. एंड मोर कॉमन इन पीपल विद मेनोपॉज वेजाइनल ड्राइनेस, क्योंकि हो जाती है हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन जो एक फीमेल हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं. उसके कारण भी कई लोगों को यूरिनरी इश्यूज शुरू हो जाते हैं. तो अगर आप उससे सफर करते हैं, देयर आर सम ऑइंटमेंट्स दैट वी कैन प्रिस्क्राइब. ईस्ट्रोजन क्रीम्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे टिश्यूज सपल हो जाते हैं, टिश्यूज की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है. और ये क्रीम्स भी बहुत हेल्प करती हैं इनकॉन्टिनेंस में. सो डिपेंडिंग ऑन योर असेसमेंट कि आपको किस चीज की जरूरत है, वो सारी ट्रीटमेंट्स ऑफर की जाती हैं ऐसे. नेक्स्ट आने. So I think this was Before we start with the Q&A session, there is a small questionnaire that I'll be sharing with you. It's different from the questionnaire जो आप लोगों को already मिला होगा. So please इसको भर दीजिए and then we can start with the Q&A session. it'll take 2 or 3 minutes, I think, just to fill up. Yeah, it's a very short questionnaire. It's very similar to the one you've already filled. Only this one is for after the session. आपको चैट में नजर आएगा ये, so you can fill it. क्या आप लोग भर रहे हैं?
क्या लेके जाएगी? While the responses come in, I think we can resume with the question answer session. So अगर आपको कोई भी questions हो, you can put it in the chat box और आप unmute करके भी पूछ सकते हो. Yes, I'll be happy to answer any queries. And as far as the Kegel exercise video is concerned, yes, we will shortly share a video. Good point taken. Next, कभी किसी ने वीडियो दिखाने के लिए पूछा ही नहीं है अभी तक कि एक्सरसाइज का एरिया ऐसा है, मसल्स अंदर हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं, सो हम इलिस्ट्रेशन जरूर दिखाते हैं, पिक्चर जरूर दिखाते हैं ऑफ की कौन सी मसल्स हैं जो करनी है कॉन्ट्रैक्ट, पर उन्हें कैसे वो करना है उसके लिए yes of course shortly and maybe we can share it with you directly, right Anya? Yeah. So hi ma'am, Priyanka this side. So I just joined late. So I just want to ask one thing. Actually, after pregnancy, I face that issue. Earlier, I don't have. So after pregnancy, what happened? It's not normally every day. I have to be happen this kind of problem. But sometimes I sneeze, sneeze very hard, or sometimes that kind of thing happened to me. So is this normal or do I need to do this? जी हम इस बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली नॉर्मल तो देखो नहीं है, आप यंग हो, अभी बेबी हुआ है, और उस एरिया में थोड़ा इंजरी और थोड़ा मसल की वीकनेस जरूर आ जाती है डिलीवरी के बाद, और अगर उसकी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ना करें ये प्रॉब्लम टाइम तक आ जाती है. पर आप इस एक्सरसाइज शुरू कर दोगे तो आने वाले टाइम में आपका ये 100% रिजॉल्व कर जाएगा और आपको ये चिंता ही नहीं रहेगी कि मेरा खांसने या छींकने से यूरिन निकल जाता है. सो यू मस्ट लर्न कीगल्स एक्सरसाइजेस. आप हमने वैसे एक्सप्लेन भी किया है, आन्या शेयर भी करेगी आप लोगों के साथ a small guide on few things how to manage your bladder habits better, and those exercises is something मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे हम अगर यूरिन पास कर रहे हैं और पास करते हुए हमें यूरिन रोकना हो तो जो अंदर की मसल्स हम कंट्रैक्ट करते हैं, आप सभी अभी कंट्रैक्ट करके देख लीजिए कि किसी मसल अंदर कंट्रैक्ट करती हैं, पर ध्यान रहे पेट की मसल या बटक्स की मसल को कंट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ डीप इनर मसल्स जो हम यूज करते हैं यूरिन रोकने में वो मसल्स को यूज करना है. उसको कंट्रैक्ट करिए. आप रियलाइज करोगे कोई 2 सेकंड रख पा रहा है कंट्रैक्ट करके, कोई 1 सेकंड, किसी को नहीं भी समझ आ रही हो सकती, एंड जिनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है वो 10 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं. हमें लाना उसको 10 सेकंड तक है. शुरू में अगर 1-8 सेकंड ही कंट्रैक्ट हो रही है कोई बात नहीं, करिए, वो फिर से छूट जाती है, फिर करिए, फिर छूट जाएगी. पर धीरे धीरे अगर आप 10 बार सुबह ऐसा करेंगे, 10 बार दोपहर को, 10 बार शाम को, और ये मिनिमम हम बोलते हैं 3 महीने, पर एक्चुअली तो ये लाइफ लॉन्ग आदत है, ये एक हैबिट है जो बन जाएगी तो उसका आपको असर नजर आएगा. सो आप एक्सरसाइज शुरू करें, उससे आपको रिलीफ मिलेगा. और अगर आपको डाउट है कि मैं ठीक मसल्स यूज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कैसे करना है, डू कम टू अस फॉर एन असेसमेंट. हम चेक करके आपको वो मसल्स फील करा के समझा देते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन पे दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू कंट्रैक्ट, एंड उससे 99% को समझ आ जाती है, अच्छा ऐसे मुझे मसल्स कंट्रैक्ट करनी है, या कंफर्म हो जाता है कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. इससे आपकी प्रॉब्लम अभी के अभी मतलब इन द सेंस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही रिजॉल्व हो जाएगी और फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी लेटर इन लाइफ की.
Okay, okay. Thank you so much. Okay. Got it. I have got a question here that I'm suffering from overactive bladder for past 1.5 years and had a lot of pain and burning in my vagina. Right now I'm taking Mirago and Cystopan. आप ले रहे हैं दवाइयाँ लेने की जरूरत है, पर साथ में bladder retraining, meaning working on कि गैप दिया जा सके और फिर जाया जाए, इस पे आई डोंट नो फ्लूइड मैनेजमेंट अपना कर रहे हैं या नहीं. तो अगर ओवर फ्लूइड्स ले रहे हैं, इसमें बड़ा रोल, अगर आपको बर्निंग भी रहती है, देन देयर इज लॉट ऑफ रोल ऑफ कि आप ऐसी चीजें बंद करें जिनसे बर्निंग होती है. और वो हमारे खाने में है, ये सारी चीजें, कैफीन है, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या खट्टी चीजें हैं, ऑरेंजेस हैं, मौसमी है, नींबू है और टमाटर है. कई लोगों को ये वाली चीजें ब्लैडर इरिटेशन करती हैं, ब्लैडर के अंदर की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करती हैं. तो ऐसी चीजें बंद करने से भी फर्क पड़ेगा बर्निंग वाली सेंसेशन में. और फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप मिरागो और सिस्टोपैन ले रहे हो, उससे डिफरेंस आता है. हाँ, लोग लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, दैट इशू इज देयर, एंड फ्लूइड मैनेजमेंट जरूर करिए. Yes, ma'am. I just wanted to add one more thing, that one exercise called जी. butterfly exercise is there in yoga. जी. So that is also आसन. butterfly exercise is that you're pushing your legs to, you're in a sitting position, you're pushing your legs to Mooladhara chakra. जी. So that is, and moving the thighs. I think this is also helpful for most of the women. जी, वैसे ये ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट एरिया के लिए हेल्पफुल है, पर एक्चुअली में आई वांट टू बी वेरी पर्टिकुलर इन टेलिंग कि जब तक हम अंदर की पेल्विक फ्लोर को नहीं, वो उससे नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा. थाई एरिया क्या होता है मैं बताती हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझना. औरतें क्या करती हैं कि जब उस मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होती तो कॉम्पनसेटरी मसल्स का इस्तेमाल करती हैं. पेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम अपनी थाइस टाइट कर लेंगे, हमें तेज यूरिन लगाओ, हम टांगे नहीं इकट्ठी कर लेते, है ना. सो थाई की मसल यूज कर लेंगे, कई बटक की मसल यूज कर लेंगे कंट्रोल करने के लिए. और जब हम योग में ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, ये वैसे बेनिफिट करती हैं, पर ये कीगल्स को वीक कर देती हैं. रीजन कि हमने पेल्विक फ्लोर की जगह दूसरे एरियाज को इस्तेमाल किया वही इफेक्ट लाने के लिए. हमें वो छोड़ना है, हमें तो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करना है. इसलिए ये जरूरी है कि ये बात समझी जाए. जी, राइट. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. I think Anya has also shared a YouTube link for a video on Kegels exercise. आप लोग at leisure आराम से देख सकते हैं उसको एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कीगल्स कैसे करनी है. मेरे पास एक सवाल है, हाउ टू क्योर द ड्राइनेस फ्रॉम द यूरिन एरिया. आपकी एज डिपेंडेंट है. कई लोगों को, अगर आप यंगर एज पर्सन हैं तो योर ड्राइनेस कुड बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन दैट एरिया, इचिंग इन दैट एरिया, या यूजिंग सर्टन केमिकल्स. आजकल बहुत सारे ओवर द काउंटर वॉशेस अवेलेबल हैं जो लोग यूज करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे सफाई रहती है, या बार बार पानी यूज करते हैं धोने के लिए क्योंकि आजकल सबके घरों में जेट लगे हुए हैं बाथरूम्स में. ये सारी अच्छी आदतें नहीं है. ये हमारे नेचुरल जो एरिया की लुब्रिकेशन है, नेचुरल जो ऑयल्स रिलीज होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया वहां बैठे हैं, उन सबको हटा देता है. सो रेगुलर यूज में वॉशेस नहीं यूज करने चाहिए, बार बार जेट से धोइए नहीं, बार बार टॉयलेट में ये प्रैक्टिसेस. और आप रियलाइज करोगे आप में से शायद 80% ये प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे क्योंकि आजकल हमारे पास अवेलेबल है. हमें लगता है टॉयलेट सफाई पानी से नहीं, ऑटो क्लींजिंग एरियाज हैं, इन्हें मत धोइए ऐसे बार बार. और अगर आप मेनोपॉज के बियॉन्ड वाले पर्सन हैं उसमें आप, देयर आर सर्टेन क्रीम्स जो हम असेस करके बता सकते हैं कि ये क्रीम आपके लिए यूजफुल है स्टार्ट करना, एंड उससे वहां के एरिया में ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, सपलनेस आती है और ड्राइनेस रिड्यूस होती है. There is a question, Doctor, I am not from Delhi. How can we benefit from your advice?
I think Anya will be sharing some knowledge tips, Anya. Yes, to everyone who's filled out the form, since your email IDs are with us now, we'll be sharing a pamphlet with you in which there will be information for daily practices as well as the exercises, so that you can refer to for uh, taking care of it at home. But other than that, also, I think not just in Delhi, throughout the country, there are urogynecologists that you can reach out to, because if you want a doctor's advice on it, so you should seek that out. I'm sure there are some references that you might also have. So another question is for Anya, I think. Anya, you've been congratulated for a lovely session, and you've been asked what inspired you to get into this, to create this awareness. Yeah, so thank you so much for that question. I was actually assigned to do a project for my school in bio, and I decided to pick up this topic with Dr. Payal's guidance about urinary incontinence in women. And I was looking through the statistics, through the existing research, and I found that despite such a high incidence of there being 45% of women having this issue, only 2% of women were seeking treatment for the same. So that motivated me to talk to people, to create that awareness about this issue. Because when I asked around in my community, to my teachers, my grandmother, I found that women don't know that there are so many treatments available. There are so many ways to live a completely fulfilling life even after facing this issue. And that is why I decided to create this awareness, because I'm very passionate about women's health and women's rights. And I think that one thing that really goes overseen is women's health. So that's why I decided to start this. Uh, there's another question for Dr. Payal. Do you recommend yoga? Definitely. Overall body strengthening comes with yoga. But as I said, for Kegels specifically, I wouldn't want to go to yoga, because in that, you tend to contract other muscles as well. And one thing that we are trying to do in Kegels is for you to isolate your inner pelvic floor muscles. Understand they are a separate set of muscles which need to be strengthened. That strengthening wouldn't come if you will use compensatory muscles of the abdomen, thighs, and buttocks. So that is a very, very important message that I want to give, that it has to be pelvic floor muscles which are to be strengthened. So yoga is wonderful. I think it's one of the, yoga हमारे देश की देन है दुनिया को. And I am a big proponent of yoga. I myself try and do yoga on a daily basis, but not for pelvic floor, because उसमें हम compensatory muscles use करते हैं. There is Anya, another I question. think, sorry to interrupt. Anya, Madhu Divanji has asked a question on chat. Yes, I'm just coming to that. मधु जी का शायद मैंने जवाब दे दिया है उषा जी. Okay. हाँ जी. But there is another question. Is VWash a safe brand? हेलो मैम. हेलो पायल मैम. जी मैम, नमस्कार मैम. मैं स्वाति कांडपाल बोल रही हूँ, ग्रामीण किसान विकास सोसाइटी में. मैम मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, तो मैं एक जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हूँ, जो हमारी उत्तराखंड में 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है. तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें हमारा अवेयरनेस का भी प्रोजेक्ट है. तो वहाँ जब हम गांव में काम करते हैं, तो वहाँ हम महिलाओं पे देखते हैं, तो बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है उस सब चीज़ों के बारे में. काफ़ी देर से आप लोगों के पॉइंट्स वगैरह ये सब चीज़ें सुन रही थी, मिस अनन्या के भी और आपके भी. तो वहाँ पे बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है. जैसे वहाँ विमेंस होती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी. और जैसे आप कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए. हमें अच्छे से मालूम है कि रूरल एरिया में एक्सरसाइज तो बहुत मुश्किल ही है कि वो कर पाते हैं, क्योंकि ये गाय भैंस वगैरह खेती वगैरह से उन सब चीज़ों के लिए ही उनके पास टाइम नहीं होता. तो कोई सजेशन या फिर हम लोग उनको कैसे उनको बढ़ावा दे सके उन्हें, क्योंकि जैसे हमारा जल जीवन मिशन का
13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो अगर जी। इससे भी रिलेटेड हमारे पास कुछ चीजें हो तो हम उनको अवेयरनेस के लिए बारे में बता सकें, तो बहुत अच्छी मतलब वो हो सकती है ना, कि हम उनको गाइड कर रहे हैं या फिर किसी चीज को लेकर के हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब चीजें हैं जो आप लोगों में से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं, हो सकता है कोई ना कोई हेल्प हो जाए, तो जी। इससे रिलेटेड कुछ। जी स्वाति जी, बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। आप ये सारा काम कर रहे हो, इतने लोगों से जुड़े हुए हो, ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हो, और आप तो बहुत मदद कर सकते हो इस सारी में। एक्चुअली में नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमारे घरों में वैसे सिस्टम्स बने हुए थे ओल्डर टाइम्स में भी, और अभी भी कुछ हद तक फॉलो होते हैं जो पहले। मतलब मैम ये देख लीजिए कि अभी भी मैंने वहाँ पे सुने हैं, जैसे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, तो वो पुराने जमाने पे उसमें हांडी किस में लेकर के आते थे, वो कॉट में लेकर के आते हैं जी। प्रेग्नेंट लेडी को, तो अभी भी वहाँ पर है, जो जी। कि हमें दिख करके बहुत ज्यादा वो लगा है कि मतलब अवेयरनेस की बहुत कमी है अभी भी वहाँ पर। जी, तो स्वाति जी मुझे लगता है कि जैसे पोस्ट डिलीवरी वाला टाइम है ना, उसमें अगर औरतें आपको आके मिलती हैं या आप जाके मिल रहे हैं, तो ये वाली, मैं तो सिर्फ इतना चाहूंगी कि ये अवेयरनेस हो कि ऐसा कुछ भी होता है, ये मसल्स हमें स्ट्रेंथन करनी होती है, इसके लिए देखो उन्हें अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। इतना समझाना कि जिस वक्त खाना बना रहे हैं या जिस वक्त बच्चे को दूध पिला रहे हैं, मान लीजिए दूध पिलाते हुए साथ में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करनी सीखनी है। कीगल्स एक्सरसाइजेस आने आपके साथ भी, आपने अगर फॉर्म्स भरे हैं तो आपके साथ ईमेल पे लिंक शेयर करने वाली है। आप अगर वो छोटा एक वीडियो भी, आजकल फोन सबके हाथ, वीडियो भी दिखाते हैं तो आप वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और वो उसके लिए उनको सेपरेटली टाइम नहीं निकालना है, दूध पिला रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या खेत में ही है, तो वो बीच में से ये एक्सरसाइज करनी है 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर, 10 बार शाम, 10-10 सेकंड के लिए। कितना समय लगेगा उसमें? मे बी 2 से 3 मिनट सुबह, 2 से 3 मिनट दोपहर, 2 से 3 मिनट शाम। सो आई थिंक बताना जरूरी है। आप कनेक्टेड हैं, आप जरूर बताइए। आन्या आपके साथ जो चीजें शेयर कर रही है, आप उनसे मे बी यू कैन शेयर दोज यूट्यूब वीडियोज एंड दे कैन स्टार्ट लर्निंग एंड डूइंग इट। हाँ यस मैम, बट मैम मैं सोच रही थी कि अगर इससे रिलेटेड कोई चीजें ऐसी हों, वीडियोस वगैरह भी, हम लोग जैसे वहाँ पर हमारा ये होता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क को लेकर के। बहुत प्रॉब्लम हमने इसको फेस किया है, बहुत ज्यादा, तो अवेलेबल नहीं हो पाता कि प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग वहाँ हो। वीडियो आप ये लगा लीजिए कि ओटीपी लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ओटीपी तक लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक वीडियो तो 3 सेकंड 5 सेकंड वगैरह की हो जाती है, तो इससे कुछ डिफरेंट। जी, आन्या मटेरियल शेयर करेगी आपके साथ स्वाति जी, आप देखिए वो आपके लिए कैसे यूजफुल है, फिर हम और ऐड कर सकते हैं, आप रिवर्ट बैक करिए। ओके मैम, ओके जी ठीक है, थैंक यू मैम। जी, डॉक्टर प्रमिला हैज रेज्ड अ हैंड। Let me first of all congratulate and thank you for such a lucid and wonderful presentation you made. Very pertinent and relevant to the women. We are working in Rajasthan. I am also the Committee of Women Empowerment at the national level. Other than that, as a UNGCNI representative in Rajasthan, we work with panchayats and almost say 1,200 plus women are volunteers with us. And we also work extensively with the women working in Narega. So a couple of things that I have taken from you is something that I'm going to share with them. And also I wanted to know, as you just said, 50 plus women, what is it that they need to be using to be on the safe side? Because I've seen the recurring UTI infections with elderly women mostly. So if you could throw some light on that, Doctor, would be wonderful.
जी, सो 50+ मीन्स की पीरियड्स बंद हो गए हैं फॉर मेजॉरिटी। कोई कोई होता है जिसके 51, 52 या 53 तक चल रहे हैं, बट मेजरली इट इज अ ग्रुप विच इज पोस्ट मीनोपॉजल, जब पीरियड्स बंद हो गए और कम से कम साल हो गया पीरियड बंद हुए। शुरू शुरू में ठीक ही लगेगा, पर धीरे धीरे क्या होगा कि ये टिश्यूज जो हैं इनको ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरीज हमारी अंडेदानियां रिलीज करती हैं एंड टिश्यूज को सपल रखती हैं, वो हार्मोन शरीर से कम होना शुरू हो जाता है। और उस हार्मोन की कमी से जो अंदर की लाइनिंग है वजाइना की, वो पतली होने लग जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है। तो ऐसे में बार बार यूरिन इन्फेक्शन आना और बार बार या वजाइनल ड्राइनेस रहना, ये 2 बड़ी कॉमन चीजें हैं जो होती हैं। सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम जो है अगर हम उसका वो रिजॉल्व कर दें कारण, तो ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं एक्चुअली, जो अंडर वैसे मेडिकल गाइडेंस हम देते हैं ताकि रॉन्ग तरीके से ना यूज हो, एक्सेसिव यूजेज ना हो। तो 3 महीने डेली लगानी होती है, उसके बाद हफ्ते में 2 बार लगानी होती है। एक बार एग्जामिनेशन चाहिए होता है बिफोर यू कैन प्रिस्क्राइब इट। आई वुडंट रिकमेंड इट्स प्रिस्क्रिप्शन ऑन अ जनरल बेसिस कि हम एज अ वो बांट रहे हैं कि हाँ कोई भी लगा सकता है, बिकॉज पीपल विद मेजर हार्ट इश्यूज उनमें थोड़ा संभल के लगाने, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन कैन यूज इट। पर किसको एक्चुअल जरूरत है और किसको नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। और कहीं वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसे में फिर ईस्ट्रोजन क्रीम नहीं यूज करनी है। तो आई थिंक नियर बाय प्लेस चेकअप्स एंड टॉकिंग टू योर हेल्थ प्रोवाइडर, जिसके पास भी आप दिखा रहे हैं, डॉक्टर है, नर्स है, एएनएम है, कि ये इशू है और मुझे ऐसे पता चला है, एंड इफ दे कैन हेल्प विद द प्रिस्क्राइबिंग द क्रीम इन दोज केसेस, बिकॉज एटलीस्ट उन्होंने फिर एग्जामिन कर रखा होगा। आप बिल्कुल ठीक सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हम हमारे जो ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सीएमएचओ है उनसे बात कर लेंगे और उनके तरफ से गाइडेंस देंगे कि आप है ना ये हेल्थ कैंप्स जो हम होने वाले हैं अभी, उनमें आप स्पेशली वुमेन को इस कंपोनेंट पे भी एड्रेस करें, बिकॉज दे जनरली विल नॉट कम फॉर दिस, दैट इज द होल पॉइंट। अगर हमारी 30% वुमेन है पोस्ट मेनोपॉजल में, 1% भी नहीं आती है डॉक्टर के पास या मेडिकल गाइडेंस के लिए, ये इशू है, वो घर में ही उसको कुछ कुछ करके एड्रेस करती रहती है। तो ये हम स्पेशली उनको बोलेंगे, that's going to be an outreach process from our end. Thank you so much for your kind guidance. Thank you, Dr. Pramila. सुमन जी का भी एक क्वेश्चन है आन्या। I'll just go through this. जी, so normal तो नहीं है सुमन जी, वैसे you will always have, विंटर्स में ज्यादा यूरिन पास करना पड़ता है, समर में कम करना पड़ता है, ये नेचुरल वो है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, फ्लूइड इनटेक हमारी उस हिसाब से हो जानी चाहिए। हमें समर में रिक्वायरमेंट ज्यादा है बिकॉज हम लूज ज्यादा कर रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, पसीना निकल रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। तो आपकी फ्लूइड इनटेक अगर दिन में 2 लीटर के आसपास है, तो जनरली दैट विल बी सफिशिएंट। एक ग्लास हमारा जो नॉर्मल हम घर में कह लीजिए 120 ml तक का है, और जो रेगुलर पानी जिसमें हम पीते हैं वो ऑलमोस्ट 200 to 250 ml का ग्लास होता है। तो अगर पानी पी रहे हैं तो 4 से 6 ग्लास दिन भर में बहुत है। और अगर पानी के साथ आप दूसरी चीजें भी, छाछ पी रहे हैं, लस्सी है, नींबू पानी है, आप उनको भी काउंटिंग में रखिए और कोशिश करिए कि 2 लीटर से ज्यादा ना हो। एंड विमेन स्पेशली हु आर गोइंग मोर एट नाइट, उनके लिए प्लीज शाम वाली चाय छोड़ दीजिए। सुबह चाय पीजिए, आप 11-12 बजे पीना चाहते हैं पीजिए, और शाम की चाय और उसके बाद जो पानी पी रहे हैं उसकी अमाउंट थोड़ा रिड्यूस्ड हो, नहीं तो आपको रात भर बना रहे हो ना पड़ेगा। तो ये एक चेंज है विच विल हेल्प, विच कैन बी डन। दूसरा आपने कहा कि लीकेज तो नॉर्मल नहीं है, इसको हमने नॉर्मल मानना भी नहीं है। इसका तो सोल्यूशन यही है कि कीगल्स एक्सरसाइज सीखी जाए और प्रैक्टिस करी जाए, आपको फर्क मिलेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सुमन जी। Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Dr. Payal, once it's a simple question. When you are on journey or something and ऐसा लगता है कि अभी वॉशरूम्स नहीं होगा, कई बार जर्नी में होता है, और हम लोग, इट्स ए मीट और इट्स ए फैक्ट कि नारियल पानी हम पी रहे हैं, तो बड़े लोग कहते थे ना, नहीं 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 अभी उससे जल्दी यूरिन आ जाएगा,
वाटर में पी रहे, इससे जल्दी यूरिन आ जाए। तो कई बार क्या होता नहीं है, नारियल पानी नहीं पीते, वॉशरूम रास्ते में अभी लंबी जर्नी में हो जाता है। इज इज ए राइट और रॉन्ग? एक्चुअली तो राइट है। फ्लूइड इनटेक किसी भी फॉर्म का जब हम लेंगे तो यूरिन आएगा ही आएगा थोड़ी देर में, है ना। और ब्लैडर की एक कैपेसिटी है, एक नॉर्मल पर्सन जिसका ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसकी 400 से 600 ml की कैपेसिटी है। 600 पे तो हमें बिल्कुल डिजायर हो रहा होता है कि हाँ टॉयलेट जाना है और करके आना है। 400 पे अच्छे से सेंसेशन आ रही होती है। जिन लोगों को अर्जेंसी की प्रॉब्लम है उनको 200 पे भी सेंसेशन आएगी। तो जैसे ही हम पानी खूब सारा पिएंगे या कोई लिक्विड लेंगे, हमारी किडनीज काम करेंगी, यूरिन बनाएंगी, ब्लैडर भर जाएगा। ब्लैडर भरते ही ब्रेन को सेंसेशन आनी शुरू हो जाएगी, चलिए टॉयलेट जाने की जरूरत है, जाना है जाना है। सो यस, इट इज डेफिनेटली अ प्रैक्टिस दैट ओकेजनली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अपना फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्टेड रखिए। और स्पेशली हाई कैफीन ड्रिंक्स तो बिल्कुल। सो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, चाय कॉफी, ये तो हम जानते ही है कि चाय पी तो प्रेशर बनता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। सो ये सारी चीजें ही इन ट्रैवल, स्पेशली इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू अ टॉयलेट फॉर सम टाइम, तो अवॉइड कर लेनी चाहिए। थोड़ी देर प्यास लग भी रही है तो एक आध घूंट बीच में पीते करते। थैंक यू डॉक्टर पायल। चैट में कोई क्वेश्चन? Indeed, it's a really a great session. And I must compliment Dr. Payal Chaudhary and of course Anya to moderate so beautifully. So Pallavi Jain, I hope many questions. Sorry. Pallavi Jain has put up a question. I'll answer that, Anita ji. आप finish कर लीजिए. Let's take Pallavi's question first. Ma'am, can you please tell how much water should be consumed in a day? Yes, that's an important thing. जी, I have been actually talking about that. ये जो बहुत सारा पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, मे बी टू सम एक्सटेंट। पर क्या उसके साथ हम ये ब्लैडर की प्रॉब्लम झेलना चाहते? नहीं। So what we really need to do is do a balance. Winter months, even 1.4, 1.5 लीटर थ्रू द डे सफिशिएंट। मैं आपको एस्टिमेट जनरल बता रही थी, चाय का कप 120 ml के आसपास होता है, और पानी का ग्लास जो हमारे घरों में स्टील के ग्लास हैं या दूसरे, ऑलमोस्ट 180 to 200 ml का ग्लास होता है। सो अगर आप 5 ग्लास पानी आप चाय भी पियोगे बीच में, आपने जैसे आपने कहा नारियल पानी, नींबू पानी, कुछ वो सब लिक्विड जो आप ले रहे हो वो काउंटिंग में है, सूप पी रहे हो वो काउंटिंग में है। सो वो टोटल आपका 1500 सर्दियों में एंड मैक्सिमम में मे बी 2000 इन समर्स, अनटिल यू आर आउट इन द ओपन फॉर आवर्स, फिर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। एंड हमारा एक्चुअली सबको पता ही होता है, पर यूरिन का कलर भी बता देता है कि हम डिहाइड्रेटेड है या वेल हाइड्रेटेड है। बिल्कुल क्लियर यूरिन है, बार बार जाना पड़ रहा है, हर घंटे में उठ के जाना पड़ रहा है, बहुत पानी पी रहे हो इसका मतलब। और अगर आपका बिल्कुल डार्क येलो यूरिन हो रहा है, थोड़ा सा अमाउंट आई है, हल्का जलन दे रहा है, दैट मीन्स यूर डिहाइड्रेटेड, इंक्रीज योर फ्लूइड इनटेक। बट ballpark figure, I would say 1.5 to 2 liter is sufficient for anyone. And is it related to white discharge also? There's another question from Swati. No, it is not related to white discharge. That's a completely different thing. That generally either vaginal infection या कई बार normal vaginal discharge होता है, जो periods के कौन सी stage पे आप हो, mid cycle में it will be thin discharge जो बिल्कुल twin जैसा होता है, late in the cycle thick discharge होगा, so वो normal discharge होते हैं। कई बार किसी को excessive हो रहा है, itching के साथ हो रहा है, वो abnormal discharge है, पर ये urinary issue से related नहीं। Fine, ma'am. Thanks, a lot of things, lot of questions, and it has really become an interactive session. And I must say, we took time. काफी दिनों के बाद हमने ये session किया, but yes, we are going to do it regularly now, and we are going to name the series very catchy name so that people will come more. And this is the first start at national level, wherein we have got throughout the session 50 plus participants were always there, so that's a good number. And definitely once the the word of mouth will go away from each members, each participant, so we will have more. And first of all, I shall be inviting you very soon. And here I would like to address to all the participants here that ISTT has just started this awareness sessions now.
and we shall be taking it over regularly for all the members, and we shall be reaching out to the, because this is very important. Many chapters that we're doing, I can only share the experience of my own chapter where I comes from. During the COVID time, we were going through a tough time, and we started a session series called Hum Tumhar Corona. And that went off so very well. Across India, people were coming. They were, every time we were addressing with a new expert, and every expert were giving their views. Like, in so many issues were there. So it went off very well. And this health is undoubtedly a great, very important aspect, which कहीं ना कहीं हम लोगों को हम पीछे छोड़ रहे थे. पिछले कुछ महीनों से हमने गैप दे दिया था. लेकिन I'm very much sure, and I'm really thankful to my RVP, our regional vice president, Northern regional vice president, Mrs. Usha Jain, who took this initiative and brought us back to this. And members like Pramila ji, इन्होंने तो पूरा पैटर्न संभाला हुआ है पूरे राजस्थान को, इन्होंने पूरा हिला रखा है. Sometimes दिल्ली भी हिल जाता है इनकी कॉल पे. She's got a great support of the field workers and all. So we shall be reaching and we'll be achieving जो हमारा एक आज एक मुद्दा रहता है कि इस तरह के कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जितना ज्यादा अवेयरनेस आप कर सकेंगे. So thank you, and thank you each one of us. हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर संबा शिवा राव भी मुझे दिखाई दे रहे थे. Where I would like to have him just for a word of say something, sir. Are you there, Dr. Samba Shiva Rao, sir? I think he must have left. And I could see Dr. Yogesh Upadhyay, the past president, would love to have. वैसे sir, आपके views हमें मिल चुके हैं. लेकिन जब आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक लाइन आपकी तरफ से आ जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमारी मैडम और पूरे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी. Yeah, thank you, Anita. Thank you, Usha ji. Wonderful program by Dr. Payal, and equally wonderful moderation by Anya. See, these are the very, I wanted to say neglected aspect of life, health, but I don't use, that's why I use important aspect of life, because not we have elderly women in our family, and we always see how they are. So this, and I'm very happy that there are two participants, they are working in this area in NGO, and they have highlighted this issue. I think benefits are many, especially the first presentation made by Ms. Anya. It is a very good input for all of us to sensitize these issues and take a, see, precaution is always better. We say precaution. So visit the doctor before the problem. See, that is the mantra, and we always do. Actually, at least I am following, like we go preventive maintenance of vehicle and all, but we neglect our own health. So I request go to the doctor at correct age, and wonderful contribution by female, because I am extension of my mom. My children are extension of my wife. So they are more important. Fatherhood is just not I don't consider it as a, so women health, if women is healthy, the family is healthy. The major stakeholder in family. So thank you. Right. Dr. Payal, Anya, and two wonderful office bearer who has arranged this program, and we can repeat this. Those who have missed or recorded, we can. Shall we continue it, sir? Thank you so very much. And I will request arrange for men also, because they are also 41% of population. Thank you. We'll be having next. Dr. Upadhyay, the health seminars will be going on. Thank you. This is not the last one. Today in Pune, I am from Pune. We'll take benefit from Dr. Payal Chaudhary again. Then we will organize. We will also take, like Right. us. I am outside. See, clinic, tele-counseling is also have started. You can join on Zoom. Only when physical examination may not be possible, but Dr. Payal can always help in preventive. Definitely. Thank you very much. Thank you so much. Because I request Usha ma'am to give away the vote of thanks, and thank you each one of you. Yes, ma'am. Usha ma'am, over to you. One thing, Anya, have you Dr. Payal answered all the Google Forms questions? Yes, I think we have. Okay. If anything, now also. Okay. Thank you, National President Anita Chauhan, and for accepting my request to hold the health seminar. Dr. Keynote Speaker, Dr. Payal, Moderator
very young, it's a very young blood, young plant, Dr. Anya Chaudhary. Sorry, doctor ही हो रहा है, doctor ही बनोगी. She has to become a doctor now. Yeah. Past National President Dr. Upadhyay and National Vice President Sambasiva Rao, all the National Council members and some friends, some families, some maybe from Max Care Health and some my Innerville friends. All they have benefited from this beautiful session and really sarthak ho gaya ki many messages I also got 5 to 10. This is an untouched topic and it's a good topic for the today's health session. So thank you very much. And thank you the IT department, Gurvinder Singh, to give the Zoom from NHQ and continuously operating. Thank you. Thank you all the Thank staff you. from NHQ. If there is time, I have something to ask. And who has introduced me, marketing head, Dr. Amit Middaji from BL Kapoor Premier Hospital. He only introduced me, Dr. Payal, a very good doctor. Thank you. Thank you, yes, to Amit ji, to Usha ji, to Anita ji, and all those who came in today and participated. It's very encouraging and, good to have you all on this platform. And especially Usha ji for making so much of effort of sending the messages and creating awareness. यही हमारा purpose है. नहीं, अभी health मेरे as a North now, regional vice president, North activities में my term is next from up to next June. चलेगा, लेकिन health तो चलेगा. Monthly 15 दिन में एक बार health चलेगा. Continuing this ISTD health initiatives and Health series. Yeah, health series. In all. Okay, bye-bye. Namaskar, everyone. Thank you for being here. And you must especially thank those few gentlemen who have been throughout this one. Yes, Dr. Yes, of course. Upadhyay, very Mr. very Anup true. Kumar, Very true. Mr. Yogesh All Upadhyay, the major male members left, but we are very much Anthony thankful. Joseph sir. You have supported and you have खड़े हुए हैं अभी तक. Right. Thank you. And I thank Anthony Joseph ji from Kochi chapter. Thank you so very much. People across various chapters joined us today for this, and we shall be continuing this ICD health drive. Thank you. Bye bye. Good day. Namaskar.